So we were discussing about formation of sigma and pi bond. So sigma and pi bond formation takes place by overlapping of orbitals, and in front of you have the formation of sigma bond. The sigma bond formation can take place by overlapping of ss orbital. The head-on overlap takes place. S orbital cannot form a pi bond because s orbital is symmetrical about the axis. It's symmetrical in all the directions about the axis, so it cannot form a pi bond. It will also always form a sigma bond. And you can again see in this case that sp overlap will take place, and sp overlap in this way will also give rise to a sigma bond formation. And then the pp overlap can give rise to both the type of bond. If it head-on overlap takes place, then it will form a sigma bond. But if the lateral overlap takes place in this case, you can see that the lateral overlap is taking place, and when the lateral overlap of p orbital takes place, then a pi bond will be formed. A pi bond has got two lobes of electron cloud, one above the plane of the molecule, another below the plane of the molecule. And as we have discussed, the strength of sigma and pi bond are different. Sigma bond is a strong bond, whereas pi bond is a weaker bond, and the reason is the extent of overlapping. So smaller the extent of overlapping in pi bond formation, and that is why it is a weak bond. So a pi bond will always exist in addition to the sigma bond. It can never occur alone besides the C2 molecule. Now we will discuss about hybridization. Hybridization is another concept which gives us an explanation how does the formation of a molecule takes place. So in hybridization, there are certain rules of hybridization which are written as salient features of hybridization, and it says that whenever the hybridization occurs, then the intermixing of orbitals take place, and the new set of hybrid orbitals which are formed are all of equal energy. So suppose s and p orbitals, if the hybridization takes place between s and p orbital, that means intermixing of these orbitals occur, and the new hybrid orbitals which will be formed, you know that for a particular shell, p orbitals are higher in energy than s orbital. Or if you compare d orbital, d is even higher than p and s orbital in energy. But whenever hybrid orbitals are formed, then these intermixing process, then the hybrid orbitals which are formed are equal in number. Suppose three orbitals are participating in hybridization, then after hybridization, the hybrid orbitals which will be formed will also be 4 in number. Okay, and the energy of all of them will be equal. Otherwise, you know that the energy of f orbital is highest among all the 4 orbitals of a given shell, energy shell. Okay, so these are the certain salient features of hybridization which are there in front of the screen. The first one is the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized, which I told you right now. Suppose we talk about sp2 hybridization. In sp2 hybridization, you can see that you have got one s orbital and two p orbitals. So that means total of three atomic orbitals are participating in hybridization. So if 3 atomic orbitals are participating in hybridization, then the number of hybrid orbitals formed will also be 3, and all of them will be of same energy. Okay, and these orbitals will again arrange themselves in a particular way in space. So according to their particular arrangement, a molecule has got a given structure that we will discuss. Now hybridization will give you the structure similar to VSEPR theory. So both of them are correlated. It's not that it's entirely different thing, but the things are correlated, which you will see now. यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4, 5 हो, तो उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं. उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बोलता है, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. तो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो भी बन रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो सिमिलर होती है और उनका शेप भी जो है वो सिमिलर होता है.
The third point is the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than pure atomic orbital, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। और ये चौथा पॉइंट भी मैंने आपको पहले बताया, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को करेंगे। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है जो वेस्पर थ्योरी में अप्लाई किया था, दैट द ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ, उसमें हमने ऑर्बिटल के बाद उसमें हमने बॉन्ड पेयर की बात की थी। तो बॉन्ड पेयर्स दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे इन स्पेस सो दैट देयर इज मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है, बस हम यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के टर्म्स में अब बातें कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है। These hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion, ये देखिए important point है, minimum repulsion between electron pair and thus a stable arrangement। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन होगा तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। और इसी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को बताता है, बिकॉज ऑफ विच द मॉलिक्यूल हैज गॉट अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। नाउ क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू टेक प्लेस? तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का ही जो है ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है। जब भी ये याद रखिए कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो इट इज ऑलवेज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट, इट इज नॉट द कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल का होगा? वैलेंस शेल का होगा इलेक्ट्रॉन। तो वही वो बोल रहा है कि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ऑलमोस्ट इक्वल कहा गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी। लाइक इफ यू हैव एक का अगर 2s है तो अगले का जो है वो 3d हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सिमिलर का मतलब हुआ कि इफ़ वी आर यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सपोज हम d ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं तो हम 3s 3p और 3d को ऑर्बिटल्स को हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो 2p विल हाइब्रिडाइज विथ 3d, ऐसा नहीं होगा। सो दैट मीन्स द ऑर्बिटल्स विच आर अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल। इट्स नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट ऑलमोस्ट इक्वल। सो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर, ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम मॉलिक्यूल का PCl5 वगैरह का भी हम देखेंगे, आपने पढ़ा था कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एक्सपैंडेड ऑक्टेट, यानी वो 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ होता है। एंड द एग्जाम्पल दैट यू हैड स्टडीड वाज PCl5 SF6 आपने पढ़ा था। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, मतलब वो हायर एनर्जी लेवल पे उनको एक्साइट किया जाता है। सो दैट कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वी विल सी द एग्जाम्पल, और तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा दैट ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे हैं। Now the last one is, it is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. सिर्फ half filled नहीं होना चाहिए, full filled भी हो सकता है, completely filled orbitals भी हो सकते हैं। So in types of hybridization, आप यहाँ पे देख रहे हो कि various types of hybridization involve s, p and d orbital। ये 3 ऑर्बिटल को यूज करके different type of hybrid orbitals बनते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें है sp हाइब्रिडाइजेशन का। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जो है आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन किस में देखा गया है? इट इज फाउंड इन एल्काइंस, एल्काइन। तो जहाँ पे भी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है वहाँ पे उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्डेड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जहाँ पे भी कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सो CH4 मीथेन एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, या कोई भी एल्केन, इथेन, प्रोपेन, आपने 10th में पढ़ा था, कोई भी एल्केन जो है वो सारे कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो इन एल्केन्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ एल्कीन, जहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, मैंने आपको बताया उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होता है। तो आपने इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा था कि कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो सिर्फ
दो कार्बन एटम के बीच में ही डबल बॉन्ड हो, वो ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जहाँ पे भी वो ट्रिपल बॉन्डेड होगा वो हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लाइक इन केस ऑफ साइनाइड्स आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, CN ग्रुप को बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं या साइनाइड बोलते हैं। तो इन केस ऑफ नाइट्राइल्स कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो वहाँ पे भी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन केस ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड, यू सी दिस एग्जाम्पल, अभी मैंने ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइजेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस, और इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेरिलियम ट्राइक्लोराइड। तो बेरिलियम ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब ये देखिए बेरिलियम ट्राइक्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए, सो यू हैव टू डील इन what is the atomic number of beryllium? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4। हाँ ठीक है, 4 होता है। 4। हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2। ठीक है, अब मैं बॉक्स के टर्म्स में बना रही हूँ, ठीक है। ये 1s का बॉक्स हो गया, ये 2x का बॉक्स हो गया। 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिए, एंड 2s2। ओके, तो ये 1s ऑर्बिटल का है और ये 2s ऑर्बिटल है। तो इसका ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा आपके पास कौन सा कॉन्फ़िगर है? नाउ यू हैव क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? व्हाट इज का आउट ऑफ, आपको बस वैलेंस बताना है, वैलेंस, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p5। करेक्ट 3s2 3p5। ओके, तो जब हम 3s2 3p5 बनाएंगे तो ये मेरा 3s2 हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और 5 इलेक्ट्रॉन 3p में आपको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखो 3s 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, और यहाँ पे है इन केस ऑफ क्लोरीन यू हैव द 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स। सो अब हम यहाँ पे क्या बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट हाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म इन केस ऑफ दिस। तो ये देखिए यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखिए एंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी शेप भी जो होती है वो डिफरेंट होती है अपने ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से, और सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो सेम होती है। सो इन दिस केस हाउ द फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, दिस इज द s, यू नो दैट s ऑर्बिटल्स ओवर हियर, और ये p ऑर्बिटल है, और ये दोनों की मिक्सिंग करके जो एंटायर शेप बना है वो है ये शेप जो वो दिखा रहे हैं, दैट इज द शेप ऑफ sp ऑर्बिटल्स। एंड sp ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, यू कैन सी दैट यहाँ पे sp ऑर्बिटल हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। तो ये वेस्पर थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? क्योंकि वेस्पर थ्योरी में भी आपने पढ़ा था कि जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं तो दोनों बॉन्ड पेयर जो है अपने आप को एक दूसरे को मैक्सिमम दूरी पे रखते हैं, एंड दैट केस ऑल्सो द बॉन्ड एंगल वाज 180 डिग्री। तो इस केस में भी देखिए ये बॉन्ड एंगल है 100। तो बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये है बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कौन कर रहा है? क्लोरीन जो है वो ओवरलैप कर रहा है। सो यू कैन सी दैट दीज आर द p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे आपने देखा कि क्लोरीन में कौन सा p ऑर्बिटल ही वेकेंट है, तो p ऑर्बिटल जब वेकेंट है तो यहाँ पर p ऑर्बिटल का ही उन्होंने बनाया हुआ है। p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन इज ओवरलैपिंग विद द sp hybridized orbital of beryllium, and in this way you can see that there are 2 and these they are arranged at 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का जो है वो बॉन्ड एंगल है। तो यही चीज आपने बेरिलियम के केस में वेस्पर थ्योरी में ही पढ़ा था। सो इट इज मोर और लेस सिमिलर टू दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम dichlorides. In this case you can see the bond angle is 180 degree.
सो दिस इज व्हाट द यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सी इन दिस केस 1 2s and 1 2p hybrid orbital get hybridized to form 2 sp hybrid orbitals of beryllium. और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ है ये देखो, ये पे 2s है लेकिन यहाँ पे तो 2s कम्प्लीटली फिल्ड है, तो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कैसे करेगा? अगर बेरिलियम के पास 2s है तो इसका मतलब उसके पास 2p भी होगा, और ये 2p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट हैं इसके पास. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास 2p ऑर्बिटल नहीं है, उसके पास 2p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है. ये है उसका वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल. और जब बेरिलियम का हम एक्साइटेशन स्टेट लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट यही होता है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं अभी बातें कर रही हूँ. देखिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट को बेरिलियम लिखने के बाद यहाँ पे स्टार बना देंगे ऊपर में, एंड वन ऑफ द 2s ऑर्बिटल्स इट विल जम्प टू 2p. ये एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. Okay, so you will write like this. We are only talking about the valence electron. So यहाँ पे हम बस 2 की बात करेंगे. 1s का कोई रोल नहीं है, ये 1s और इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गया. So we will only talk about 2 n is equal to 2. So when you have n is equal to 2, तो ये हो गया आपका 2s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम और ये हो गया आपका 2p ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम. तो पहले इन द ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मिनिमम एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ग्राउंड स्टेट में आपने देखा कि 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जैसे ही क्लोरीन जो है बेरिलियम को अप्रोच करना शुरू करता है तो बेरिलियम की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने के साथ ही जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में एक्साइट होके पहुंच जाता है. इट विल जंप टू 2p ऑर्बिटल. अब यहाँ पर आप देखो, अब ये हाइब्रिडाइजेशन होगा. दिस 1 एक 2s और दूसरा 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बनेगा. सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. और आपने वहाँ पे जो पॉइंट पढ़ा था कि द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन शुड ऑलमोस्ट बी ऑफ सेम एनर्जी. तो ऑलमोस्ट बी इन सेम एनर्जी का यही मतलब है. आपको पता है कि 2s का जो एनर्जी लेवल होता है वो 2p से कम होता है. दे आर नॉट सिमिलर, एकदम सेम नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस जो होता है. सो इसलिए वहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया था, शुड ऑलमोस्ट बी हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी. So in this case you can see that the hybridization takes place between one of the 2s and one of the 2p orbital. अब ये one of the 2p orbital जो है वो कोई भी हो सकता है इसमें से, कोई भी हो सकता है इसमें से. इसलिए कोई भी हो सकता है क्योंकि s ऑर्बिटल तो सिमेट्रिक है हर एक्सिस पे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2x ही हो, px ही हो या 2py ही हो. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. See how the formation of BCl3, that is boron trichloride, will take place. So boron, the configuration of boron in the ground state is, we are only going to write the valence configuration. So this is the 2s orbital and this is the 2p orbital. Okay, so you have got electron. This is completely filled. It has got 2 electrons, and this is the 2p orbital which is having 1 electron. Now in the excited state, when you write on for boron, the one of this electron will jump over here. और ये जंप करने की एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? जंप करने की एनर्जी इसको मिलती है फ्रॉम द अप्रोचिंग क्लोरीन एटम्स. As the 3 atoms of chlorine are approaching boron, the atom of boron get excited and the electron from 2s orbital will jump to 2p orbital, and in this way you can see that it will have in the excited state, this is the configuration of the excited state. You are having 1 electron in 2s and you have 2 electron in 2p in the excited state. So you can see that there are 3 half-filled orbitals, and these 3 half-filled orbitals will be used for hybridization. So these 3 hybrid orbitals are used for hybridization, and the hybridization of boron is sp2.
sp2 hybrid orbitals will be there, 2 of the p orbital and 1 of the s orbital. And now chlorine, you know that the chlorine का configuration जो outer configuration होता है वो होता है 3s2 and 3p5. ओके, सो क्लोरीन, हर क्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना देगा, दूसरा क्लोरीन का एटम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ओके, और तीसरा क्लोरीन का एटम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. तो इस वजह से आप देख सकते हो कि 3 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोरॉन के जो हैं वो 3 क्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. एंड सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BCl3 इज sp2 hybridized.